Uh, all right, welcome everyone. I'm really happy to have you all here. My name is Mohammad Shadab, and I will be guiding today's session along with Sanskar Dubey and Anshuman Rai. A little about me. I am a final year student at United University, president of WikiClub Tech, and a core team member of Google Developer Group Prayagraj. I am an open source contributor, and I have made a few contributions on Fabricator and Wiki Commons. Now, a quick word about WikiClub Tech United University. We are a student-driven open source tech community here at United University. Our goal is simple: to explore cutting-edge technology, promote open knowledge, and create opportunities for the student like us to collaborate, learn, and grow. We host workshops, organize talks, mentor peers, and even contribute to global open source projects. But more importantly, we are here to build a culture of sharing knowledge freely. Today is day 2 of our 2-day bootcamp on mastering generative AI. I want to give a big thanks to Angar Batch and Divyanshu Khandelwal for collaborating with us and making this happen. A little about Divyanshu. He's the co-founder of Angar Batch, has won 30 plus hackathons, is a SIH winner, and is now a mentor of SIH 2025. Now I would like to invite Sanskar Dubey, mentor of Wiki Club Tech, to take the session forward. Sanskar, over to you. Hey everyone, Sanskar Dubey this side. I hope you all doing good. So today we have Divyanshu Khandelwal. As you guys have talked and personally interacted with him yesterday. I hope you guys enjoy the vibe and the knowledge he shares. So he's such an intellect person. I am knowing him from the last 2 to 3 years, and he's somebody with whom I can take inspiration and take some guidance as well. So we are privileged to have you here, Divyanshu, and let's start this workshop. Divyanshu, it's over to you. ग्रेट यार, प्लीज हम ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं? थैंक यू, जस्ट गिव मी मिनट। क्या मैं विजिबल हूँ? देखो भाई साहब, ऑडियो इज नॉट कमिंग। क्या बात कर रहे हो? जरा 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 अपनेपन पे आ जाते हैं यार, थोड़ा वो फील नहीं आ रहा ना? फील नहीं आ रहा ना? अभी वो फीलिंग नहीं आई। एक सेकंड होगा बस। Recording in progress. वेलकम पब्लिक, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। क्या हालचाल मेरी जनता के? चैट बॉक्स में डाल दो सर जी तैयार है, फिर से कुछ नया सीखेंगे, मजा आ जाएगा। क्रेजी क्रेजी। आज की शायरी नहीं आई इंट्रो में। शायरी सुनेगा तू? या मेरी एक बड़ी फेवरेट शायरी है। मैं जब भी किसी सेशन में आता हूँ बस हमेशा ये बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो भूल गया। नो, आप लोग अलाउड नहीं है स्क्रीन शेयरिंग के लिए। जस्ट मिनट यार, घर से फोन है, एक सेकंड, डांट पड़ जाएगी। Recording stopped. Recording in progress. हाँ भाई साहब, आ गया। हाँ चलो यार, करते हैं कुछ ना कुछ तो। पता नहीं क्या पढ़ना है, मेरे को याद दिला दो क्या पढ़ना था हमें, क्या सीखना था हमें। शायरी अर्ज किया है। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। हर्टिंग हो गया क्या? जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, करके अपनी जिंदगी बर्बाद मोहब्बत के पीछे। अरे, करके अपनी जिंदगी बर्बाद मोहब्बत के पीछे, फिर कॉल करते हैं डीके भैया बचा लो बेरोजगार बैठे हैं। कुछ नहीं, ऐसी मार्केटिंग पे था भाई साहब। देखो, आज हम लोग बात, मेरे को याद दिला दो यार। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। अंशुमन, संस्कार, आप लोग मुझे एक बार शादाब मुझे एक बार क्लियर कर देना इफ वी कैन गो फॉर दिस कि क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि आज हम लोग पीपीटीज के बारे में बात करें, क्योंकि जो फीडबैक आप लोगों ने दिए थे उसके बेसिस पर मैं कह रहा हूँ, मेरी टीम ने जितना मेरे को बताया, हम पीपीटीज के बारे में बात कर लें और कल फिर हम लोग जनरेटिव एआई सीखते हैं। बताओ क्या बोलते हो? Nice. That means we have a 3-day workshop, right?
अल्टीमेटली आई मीन 2 day 3 days दिस इज Yeah. जस्ट नंबर। लर्निंग के आगे ये सब क्या है? क्या बोलते हो? देखो चैट बॉक्स तुम्हारे सामने है, अगर हाँ, अंगार है so this लिखते is जाओगे। something bonus for. प्लीज आई संस्कार। थॉट हाँ कि ये चीज का आंसर पब्लिक अगर देती तो ज्यादा अच्छा लगता। हम तो कौन है, हम तो बस एक कोऑर्डिनेटर्स हैं। गाइस, व्हाट डू यू फील कि शुड वी हैव अनदर सेशन ऑफ दिव्यांशु अगेन टुमारो? भाई साहब देखो, हम तो Yes, सिखाने yes, के लिए yes, बैठे हैं। yes. Everybody is excited. I guess you should go forward with this. ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब ये तो यार अगेन दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों की तरफ से ही आया है, आप लोगों ने जो फीडबैक दिए थे, हमारी टीम ने वो रिव्यू करे, उसके बाद हमें ये चीज पता चली। तो ठीक है, जनता से आगे कौन है सीखने के लिए जिस चीज में एक्साइटेड। तो चलिए भाई साहब, स्क्रीन करते हैं शेयर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे भाई। मैक्स सर ने अभी भी अपडेट नहीं किया भाई, पता नहीं ना कैसे होता। नहीं, यहाँ पे नेट था ही नहीं। नेट अभी मिला है थोड़ी देर पहले, नहीं तो आज भी ऐसी प्रॉब्लम होती जैसे कल हो रही थी। हाँ, पाइथन की क्लास बिल्कुल होगी आज, पाइथन की क्लास होगी। जिनको नहीं पता उन्हें फोमो क्यों दे रहे हो? चल बेटा चल। भाई साहब देखो, कल जब हम लोग मिले थे ना, मेरे को बस बताते जाना कि हम लोग क्या सही सेम पेज पर हैं या नहीं, या हम भटक गए हैं। कल जब हम लोग मिले थे, हम लोगों ने बात करी थी कि एक हैकाथॉन होता क्या है। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि SIH के बारे में थोड़ा सा हमने समझा था कि हैकाथॉन में क्या क्या किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। मेरे को मेरी फेवरेट चीज PSA, प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करना आपको आना चाहिए। क्या मैंने ये बात आप लोगों को बता दी थी, हाँ या ना? और शायद साथ के साथ हमने ये भी समझा था कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म से इन हैकाथॉन्स के बारे में पता कर सकते हैं। क्या यहाँ तक मुझसे जुड़े हुए हो कोई ऐसी जनता जो आज पहली बार आई है? ये हम कर चुके थे यार, है ना? ये हम कर चुके थे कल। ठीक है, नहीं पड़ता तो रिकॉर्डिंग मांग लेना, टीम से रिकॉर्डिंग दे देंगे वो लोग। आज देखो, अब क्योंकि आप लोगों ने फीडबैक दिया था, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपली हाउ टू प्रेजेंट एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखो राइटिंग भाई साहब, पता है मैं डॉक्टर बन सकता था पर नहीं बना। कल कनेक्ट नहीं हो रहा था, कल नहीं आ पाए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टीम अपनी शानदार है। नहीं तो ऐसे मतलब देखो भाई, सीधी सी बात है, विकी क्लब जैसी अगर कम्युनिटीज जिंदा हैं, अगर हमारे संस्कार भाई यहाँ पर हैं, तो ऐसी चीजें आती रहेंगी, परेशान नहीं होने का, फिर कभी सीख लेंगे। चलो बेटा, हम फिलहाल बात करते हैं इन दो चीजों के बारे में। अगेन दिस इज रिलेटेड टू द फीडबैक सेक्शंस व्हिच यू गिव। सेकेंडली, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे ये सब तो पता है, आप सीधे जनरेटिव AI पर आओ, आप सीधे PPT पर आओ। बेटा थम जा, हर चीज का एक तरीका होता है। ऐसे जो लोग बोलते हैं ना, जिनको इस तरीके से एकदम चंप करने की आदत होती है, हमें इन्हीं से बचना। इनकी वजह से जो नहीं आता है ना जिसको, वो दबा रह जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो यार सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाउ टू प्रेजेंट। मतलब मुझे नहीं पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, कुछ भी ऐसा प्रिपेयर्ड नहीं है पहले से, एज ऑलवेज। देखते हैं क्या निकलता है दिमाग से। अच्छा, हम में से किस किस को, आप चैट बॉक्स में बताइएगा। वैसे आज माइक ऑन करने की परमिशन आप लोगों को मिल जाएगी, जो हैंड रेस करेंगे वो यहाँ चैट सेक्शन में दिख जाएंगे, सो वी कैन गिव यू द परमिशन टू टर्न ऑन योर माइक। चैट बॉक्स में बताइए, हम में से किस किस को स्पीकिंग फियर है, स्टेज फियर है, या मतलब ओपनली आप बिल्कुल बोल सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमें, हमारे पास कंटेंट तो बहुत होता है, हमारे पास कंटेंट बहुत है, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट इफेक्टिवली। ठीक है यश, कल ही प्रेजेंटेशन है। चलिए, अगर आपकी कल ही प्रेजेंटेशन है तो आपको कुछ ऐसी शानदार चीज बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, हैंड रेस 2 लोगों के हो चुके हैं। गॉट इट, गॉट इट। देखते हैं अभी आप लोगों से ही बातचीत करेंगे हम लोग। लिटिल बिट इंटरनल सेलेक्ट हो गए भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है यार, एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। एक आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर, मुझे जितना याद है, जो पहला SIH हमने दिया था, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हैकाथॉन क्या होता है। मैंने अपना पहला जो हैक ये हैकाथॉन अटेंड किया था वो ऑनलाइन था, 12th में था मैं उस वक्त।
तो हैकर रैंक वगैरह पर ये टीम्स वगैरह बनाते रहते थे, है ना। तो किसी ने मेरे को रैंडमली, मैंने तो जाके अप्लाई कर दिया, किसी ने रैंडमली मेरे को बोल दिया कि यू आर इन आवर टीम, मुझसे कंसेंट भी नहीं लिया गया। मुझे इतना मतलब ऐसा, समझ रहे हो ना, इतना अजीब फील हुआ भाई, पूछा ही नहीं। वो बोल रहे हैं दैट वी हैव टेकन यू इन आवर टीम। क्यों? उनके पास एक मेंबर की कमी थी, उनका एक मेंबर लास्ट में छोड़कर चला गया, वो सेकंड थर्ड ईयर के लोग थे, है ना। तो ध्यान ही नहीं दिया, पर ठीक है। मुझे क्या लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले ज्वाइन कर सकते हैं, जी हाँ, तभी आपको लिंक भेजी गई है। अब मुझे क्या लग रहा था कि यार एक बात बताओ, हैकाथॉन, पक्की बात है कुछ ना कुछ हैकिंग से रिलेटेड होगा। अब मेरी हैकिंग से रिलेटेड भी एक कहानी है, कभी और सुनाएंगे आपको कि कितनी मार पड़ी थी हमने घर वालों से, ठीक है। वहां नहीं कर पाए थे। जब फर्स्ट ईयर में आए, पहला SIH दिया, तो जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हमने अपने आप के अंदर और दूसरों में फेस करी ना, जो हम देख रहे थे लोगों को बोलते हुए, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज शायद आप लोग मुझसे बहुत जल्दी रिलेट करेंगे। अगर एक आसपास वाली टीम का कोई मेंबर इंग्लिश में बोल रहा है, फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहा है, मजेदार एकदम, मतलब इंप्रेसिव लग रहा है, हमारा आधा मोटिवेशन तो वहीं खत्म। क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था, हम फर्स्ट ईयर के थे, आसपास वाले जो बैठे थे वो थर्ड ईयर सेकंड ईयर। अब हमें सेकंड थर्ड ईयर नहीं दिख रहा है, हम कहे यार 1 साल ही तो बड़ा है, 2 साल ही तो बड़ा है, और देखो क्या शानदार बोल रहे हैं। हम लोगों का प्रोजेक्ट था एक पासवर्ड जनरेटर, रैंडम पासवर्ड जनरेटर, यही प्रोजेक्ट था, ये हमारा SIH में था। एक हैकाथॉन में हम लेकर गए थे, जो कि पाइथन की 3000 लाइन कोड का होता है। वो लोग सैटेलाइट के थ्रू पानी की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो तुम समझ रहे हो क्या हालत हुई होगी? 24 घंटे ऐसे धकधकी बंधी रही, भाई क्या हो रहा है ये? हालांकि पहली प्रॉब्लम जो हम लोगों ने उन लोग आपस में देखी ना, वो थी कहीं ना कहीं, मतलब इसको मैं किस तरीके से लिखूं मुझे नहीं पता, डर बेसिकली। हम डर जाते हैं, ये होता है। हमने किसी और टीम को देखा, हमें डर लग गया, भाई साहब ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे नहीं हुआ, है ना। दूसरी चीज मेरी फेवरेट, जो मैं हमेशा कवर करना चाहता था, आज मौका मिल रहा है आप लोगों के सामने, फर्स्ट ईयर के सामने, वॉइस। जब भी जब भी हम प्रेजेंट करते हैं ना, हम बहुत धीरे ऐसे, सर जैसे ज्यूरी बैठी है, जज बैठे हैं, उनको घेर लिया, सर सर हमने ये बनाया है, सर हमने ऐसा किया है। बेटा क्या है ये चीज शो करती है रिदित कि आप अपनी ही सॉल्यूशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं। बहुत कॉमन है, कोई बात नहीं। एक अच्छी वॉइस में, तेज आवाज में, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मेनली वही इंसान बोलता है जो अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट होता है। ये बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप सोच कर देख लीजिए। अगर किसी की आवाज बुलंद है यानी कि वो कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट वो तभी है जब वो अपनी बात को लेकर बहुत ज्यादा श्योर है, उसको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी चीज पर विश्वास है, तभी वो बोले। और तीसरी चीज, कंटेंट। आपका डर भी खत्म हो गया, आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, लेकिन जब आपके पास बोलने के लिए कंटेंट नहीं है तो कोई यूज नहीं है। सर हमने टीम बनाई SIH, हम बजट, हमने बजट और GDG टीम का सोच के छोड़ दिया। अब मैंने अकेले बोला था बट टीम छोड़ के चली गई, पैसे वगैरह लगते हैं क्या ज्यादा? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी। SIH में तो कॉलेज भेजता है। तेरे को किसी हैकाथॉन में जाना हो, पैसे की कमी हो भाई, तो मेरे को एक बार कांटेक्ट कर ले, दैट्स कम्प्लीटली ऑन मी, रिलैक्स। लेकिन सीखना है। चलिए, तो फिलहाल यार आज ना हम इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली कंटेंट में हम PPT की ही बात करने वाले हैं, और भी चीजें होंगी। सबसे पहले इसको कवर, डर जो लगता है ना, तो यहाँ आ जाते हैं जरा। पहली चीज बहुत कॉमन है, फैजी, रिदित, आप लोग मेरे को बताना कि ये आप लोगों के साथ भी हुआ या नहीं। दीपांशु, शादाब, संस्कार, बताऊंगा मनीष। हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली, जैसे मैंने कल शायद से वो इलेक्ट्रिक बस वाला एग्जांपल लिया था, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। याददाश्त मेरी खराब है यार, डोंट माइंड। अंशिका कुछ करिए, हाँ अंशिका बोलो। गायब हो गई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कुछ लिया, सिटी बस वाला एग्जांपल लिया था। अब एक बात बताओ, आपने सिटी बस वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया।
फर्स्ट ईयर ने बनाया है, सेकंड ईयर ने बनाया, हमने कोई बहुत बेसिक सी वेबसाइट ही बनाई है, लेट्स से हमने कोई पाइथन का बहुत सिंपल सा कोड लिखा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हमारे पास। इवन इन दैट केस जब हम आसपास वालों को देखते हैं ना कहीं मन में एक फोमो सा आ जाता है, एक डर सा बैठ जाता है, यार इन लोगों को तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत कॉमन चीज है। आप मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि होता तो है। हम तो अपने दोस्त से डर जाते हैं कि हमारे सामने वाला अगर हमारी दोस्त पेपर में बहुत ज्यादा लिख रहा है और हम शांति से बैठे, हम उसमें डर जाते हैं। बताओ क्या सोल्यूशन है? आता है तो पार्टिसिपेट ही तो करना है फॉर योर ओन लर्निंग। बिल्कुल, प्रैक्टिस। ओके, ठीक है, एक एक टॉपिक, पिच ऐसे दो सीनियर भी डर जाए। बेटा तेरे सीनियर तो हम ही हैं। अपनी बात में फंसाना आना चाहिए, ये देखो पंडित इन द हाउस। मेरे को तो शब्द ही नहीं निकलते, स्टेज फियर एट पीक। अच्छा चलो ये भी दूर करेंगे अभी। और अपनी बात में फंसाना आना चाहिए, समझ रहे हो? ये हो रहा है। सर ये लेक्चर में भी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल करना है भैया। मैंने ऐसी पिच करो सीनियर्स डर गए। प्ले विद इमोशंस लाइक कुछ मीठा हो जाए फॉर कैडबरी। वेरी नाइस। मैं तो कपने लगता हूँ। ओके, और सोशल एंजाइटी। बोलो ऐसे कि वैल्यूएटर सोचे कि मैं गलत हूँ और ये बंदा सही है। ये पक्का मेरी टीम वाले हैं। पिच करने के लिए लड़की को भेज दो, सब डन है। बहुत ही मिक्स्ड स्टेटमेंट है ये, सही स्टेटमेंट नहीं कहूंगा मैं इसको, बोलना पड़ता है ऐसा। अपना काम बताना, भाड़ में जाए जनता, डजंट केयर अबाउट अस। चलिए मेरी बारी, मेरी बारी। आप में से कुछ लोगों ने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। एक मैं बता दूं, ये जो डर होता है ना, ये जनरली दो चीजों से जनरेट होता है। पहला है हाई वॉइस और दूसरा है लैंग्वेज। ये दो रीजन है जिनकी वजह से ऐसा होता है। बहुत ही कॉमन सी समस्या है ये, है ना? अब होता क्या है समझ, थोड़ा सा जल्दी स्पीड अप करते हैं चीजों को क्योंकि और भी चीजें करनी है हमें आगे। जब भी आप कभी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मार्क दिस पॉइंट, आप कभी भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर, नेवर। यू शुड चूज द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल टू एक्सप्लेन। डेफिनेटली बीच में कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश के बोलना हमेशा एक बेटर इंप्रेशन क्रिएट करता है। क्यों? ये नहीं लगता कि आपको इंग्लिश आती ही नहीं। अगेन आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ दिस थिंग कि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। यार ये ना ग्लोबल लैंग्वेज है, एक जनरल लैंग्वेज है, तो ये आपको आनी ही चाहिए। इंप्रूव कैसे करनी है? एक सिंपल रामबाण इलाज बोलता हूँ भाई साहब मैं तो। इंग्लिश इंप्रूव करने का कोई भी एक बुक या नॉवल उठा लो एंड स्टार्ट स्पीकिंग इट। डोंट रीड द बुक। नहीं, हम रीड करते हैं तो मन में बोलते हैं। कभी शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस करो, हम मन में इंग्लिश बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बोलते हैं। ग्रामर ब्रामर इससे ऐसी तैसी में गई, फ्लुएंसी बहुत अच्छी आती है मन में कभी अगर इंग्लिश में बोल रहे हो। लेकिन जहां हमने बोलना शुरू करा, भाई साहब कवाड़ा, कुछ नहीं दिख रहा। अब तो अब क्या हो, मन में बहुत शानदार होती है डेफिनेटली। मेरे साथ भी एक बार। अच्छा ये ऐसा हो क्यों रहा है शादाब? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी जीभ को जो टंग मेमोरी है वो, ये सिर्फ बोलना टाइम लगता है कि गलत बोल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly। मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बट यही रियलिटी है। जिन्होंने कभी कोशिश भी करी है इंग्लिश मन में बहुत अच्छी बोलेंगे, जैसे हमने एक्चुअल आवाज निकाली तो धीरे धीरे बोलने वो अच्छी होगी। जहां हमने अपना वॉल्यूम रेज करा, थिंग्स स्टार्टिंग गेटिंग ऑब्स्ट्रक्ट, खत्म। माय माइंड एक्चुअली नोज इंग्लिश बेटर देन माय इंग्लिश प्रोफेसर। एग्जैक्टली। सॉरी, पता है ये प्रॉब्लम क्यों आती है आशुतोष? हमारी जीभ को टंग में वो मेमोरी ही नहीं है, उसको उस तरीके से मुड़ना ही नहीं आता, उन वर्ड्स को बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं है। राइट, ये कैसे आएगी? अगेन बोलें। मैं नहीं कहता अच्छी बोले हिंदी, अच्छी बोले गलत बोले। बुक लो और कोई खाली कमरा हो ना, किसी भी तरीके का खाली कमरा हो, आप उसको जाकर बोलिए।
मन में नहीं, मन में तो बहुत अच्छी कर लेते हो, हमें बोलना है, हमें इसको, ये जीव है ना, ये जवान है, लपाड़े मारती है, चटोरी जवान, हमें इसे आदत डलवानी है। हाँ आदित्य, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ है। मैं अभी तक लगभग 40-45 हजार बच्चों के साथ डील कर चुका हूँ, सबके साथ यही प्रॉब्लम है, सब। ठीक है, तो पहली चीज तो भाई साहब मैंने ये क्लियर करी कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये क्या है, स्पीक अ बुक, मतलब मुझे नहीं पता मैं सही इंग्लिश लिख रहा हूँ या नहीं, बट स्पीक अ बुक से मेरा जो रेफरेंस है वो यही है कि हमें बोलना आना चाहिए। इससे अच्छा नहीं। ठीक है, ये मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा सर, मैं बहुत स्पीड में बोलने लगता हूँ, तेरे को प्रॉब्लम पता है ना कि तू स्पीड में बोलने लगता है, सोल्यूशन क्या है? तेरे को स्पीड कम करनी है। कैसे होगी? प्रैक्टिस करके, सिंपल। तुम्हारे पास भी बहुत टाइम है, फर्स्ट सेकंड ईयर वालों, थर्ड ईयर वालों, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, रिलैक्स। अच्छा, अब दूसरी चीज आई वॉन्स, जब भी हमारा कोई सीनियर या कोई एक एक्सपीरियंस इंसान बोल रहा होता है ना, वो भले ही झूठ भी बोल रहा है, मार्क माय वर्ड्स, वो अगर झूठ भी बोल रहा है, वो इस तरीके से बोलता है कि सामने वाला मान लेगा कि वो सच है। इसका समाधान क्या है सर? अभी मैंने नहीं खा गया, नमन को ले जाओ। नमन अंदर। हाँ, क्या कह रहा था मैं क्या बोल रहा था यार, याद दिलाओ, भटक गया मैं। Speak in front of mirror, record yourself and then listen, try to speak in front of friends and then think if I'm not, then who else? It's my approach. बिल्कुल सही अप्रोच, करेक्ट, अच्छी चीज है। यहाँ पे कोई सा भी नेट नहीं चल, वाईफाई देंगे ये लोग अभी, देंगे। मैं भी बाद में बात करता हूँ। जब कोई झूठ भी बोल रहा है, बोलता है ना, वो इस तरीके से बोलता है, वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है क्योंकि उसने मन में मान लिया है, बिलीव कर चुका है वो इंसान कि मुझे सही बोलना है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। बिलीविंग आवर ओन आइडिया। ऐसा भी नहीं करना है कि सामने वाला अगर आपके आइडिया को गलत प्रूफ कर रहा है तो भी आप बोले जा रहे हो। लॉयर्स, हाँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे को लगता है ना, हाई पिच का या ये जो डर खत्म करने का, ये है पॉलिटिशियंस। कभी अगर आपने डिबेट्स देखी हो टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे डिबेट्स वगैरह अगर देखी हो, इन लोगों का एक तरीका है कि अपनी बात को इतनी स्पीड में बोलते हैं कि ऐसा लगता है यही सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, मेरे को सारे सेम ही लगते हैं। ठीक है, हर कोई कोशिश कर रहा है अपना अपना आइडिया पिच करने की। मतलब पॉलिटिक्स से ज्यादा अच्छा हैकाथन आपको दिखेगा भी नहीं, हैकाथन जो कि 5 साल चलता है। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं कहता हूं, प्रेजेंटेशन। यानी कि जब आप बोल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, निखिल, 5 या 6 लोगों की टीम है ना, हैकाथन की बात करूं मैं स्पेसिफिक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही वाली उठा लेते हैं, या ये सबसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वुमेन सेफ्टी, ये बहुत कॉमन है जिसके ऊपर हम लोग जीते थे, राइट। अब प्रेजेंटेशन में बच्चा पता है क्या करता है, वो कोड दिखाता है या पीपीटी दिखाता है, बहुत कॉमन। निकल, या तो कोड दिखाएंगे या पीपीटी दिखाएंगे, भाई साहब दोनों ही चीजें बेकार है। जो सामने है आपको नहीं पता है, वो इंसान बिजनेस माइंडसेट वाला है, वो डेवलपर माइंडसेट वाला है, वो इनोवेटिव माइंडसेट वाला है, वो क्रिएटिव माइंडसेट वाला है, वी डोंट नो। अरे भाई, ब्रो स्पिटिंग फैक्ट्स, राइट। हम नहीं जानते कि सामने वाला जो है वो किस माइंडसेट से आया है। ठीक है, इसीलिए सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, लेट से आपके पास अगर 4-5 लैपटॉप हैं, जैसे 6 लोग हैं तो अप्रोक्स 4 या 5 लैपटॉप तो होंगे। एक में आपने अपने प्रोजेक्ट का फ्लो डायग्राम बना रखा है। कैसे यार? एआई फ्लो डायग्राम जनरेटर, बहुत सारे मिल जाएंगे, लो अटलासियन मिल गए, कोडा.io, ये तो मैं भी यूज करता हूँ, है ना। आपको यहाँ से आपको मरमेड एआई, करेक्ट, ऐसे कई सारे हैं, आप सर्च कीजिए। एक में आपने फ्लो चार्ट दिखा दिया, एक में आपने जो फ्लो डायग्राम, सॉरी फ्लो चार्ट और फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट दिखा दिया, एक में आपने वर्किंग की कोई इमेज दिखा दी,
एक में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियो दिखा दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुमेन सेफ्टी की बात करूं तो मैं क्या क्या दिखाना पसंद करूंगा, कुछ ऐसा इंटरनेट से निकाला हुआ डेटा कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, लेट्स से जनवरी से लेकर फरवरी, एक महीने के अंदर अंदर कितने केसेस ऐसे आए हैं जहां पर कि फीमेल्स ने कंप्लेंट करी है कि भाई साहब समस्या हो रही है, लड़कियों ने बोला नहीं 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 हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है ना। ये जो डेटा है ये उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की सीरियसनेस को दर्शाता है, इसीलिए ऐसी चीजें दिखाना जरूरी है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं पोर्ट्रे करना चाह रहा हूं तुम्हारे दिमाग में, पहली चीज। दूसरी चीज, अगेन पॉलिटिशियन वाली बात, वॉइस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हैकाथॉन जीतने का ना एक बहुत बड़ा कारण ये है, जो मुझे पर्सनली लगता है कभी ना कभी। हमें जब प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जाता है तो हम कोशिश ये करते हैं, मेरी टीम इस बात को ऑलरेडी जानती है, दे हैव ट्राइड इट अगेन। हम कोशिश क्या करते हैं अनिकेत, कि हम ना शांति से बोलें, सर हमने ये प्रॉब्लम, यही टोन होती है, सर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है, सर जैसे कि कार ये इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, इनमें ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, तो हमने ये सिस्टम बनाया है ट्रैक माई बस नाम से, राइट सर, इसके लिए हमने ये यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगा। दूसरी पिच सुनते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेज नहीं चला सकता, आसपास वालों के दिल बैठ जाएंगे, बट इलेक्ट्रिक बसेस में ट्रैकिंग सिस्टम होता है यार, हमारे पास कोई ऐसा ऐप है नहीं कि हम उसे ट्रैक कर सकें, मुझे पता नहीं, मतलब आगरा में तो नहीं है, आगरा मथुरा में तो नहीं है, अच्छा हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली पता है, उन लोगों को तो पता ही है, हमारे पास होना चाहिए। अब एक दूसरी पिच सुनते हैं, कुछ इस तरीके से बोला जा सकता है, थोड़ा सा लाउड वॉइस, यानी कि वो पूरा जो हॉल है ना, सबके सब सुने, समझना साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। हॉल में जितने लोग हैं सब सुन रहे हैं, क्यों? जहां इन्होंने देखा ना कि तुम हाई वॉइस में कुछ समझा रहे हो, इनका भी मोटिवेशन वैसे ही गिरा, जैसा कि आपका गिरा था यहाँ पर, रिवर्स साइकोलॉजी। बस, इवन इफ यू आर सेइंग समथिंग विच इज नॉट ट्रू, से इट इन द सेंस कि वो लगे कि भाई साहब सच है। जो कुछ बच्चे बोल भी रहते हैं, ऐसा लगे भाई साहब मुझे कम आता है, ज्यूरी बोलते ये तो मुझे भी नहीं पता, ब्लफ, करेक्ट, बट बहुत ज्यादा नहीं, आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फील कर पाओ। हैकाथॉन जीतने का एक बहुत बड़ा, जो मुझे लगता है ना कारण है बच्चों के लिए, वो ये, वो अपनी प्रॉब्लम को एक्चुअल में प्रॉब्लम मान लेते हैं। एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ ज्यूरी के सामने, जब हमने बोली थी कि मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना हैकाथॉन्स में जब जाते हैं, तो हम जो बोलते हैं कि सर अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन चाहिए, भाई साहब रामबाण चीज दे रहा हूँ, पता नहीं किसी को बताइए, आज तक नहीं बताई, अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो सर इस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा ही दी है। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो सर यहाँ पर लगभग 90 टीम्स हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, विच इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम, लेट मी प्रेजेंट यू माय आइडिया, ट्रैक मैप्स। एक एग्जांपल है, या हम लोगों ने जो वुमेन सेफ्टी ऐप बनाया था वीरा, या हमने बनाया था हियर मी एआई, इस तरीके से, राइट, गेटिंग द पॉइंट। इस तरीके की कुछ साइकोलॉजिकल लाइंस हम लोग बोल देते हैं, बस खत्म बात। लेकिन आपकी पिच, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि पूरा हॉल सुने, चाहे आवाज लो नहीं, किसी भी पॉइंट पर नहीं करनी, उस बंदे को बैठा दो, सर बैठो, 4 लैपटॉप लगे, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ, आपको कोड देखना है, ये रहा, ये नहीं कि वहां पे बैठ के विंडो स्वाइप कर रहे हैं, नहीं, उस सामने वाले की वक्त की वैल्यू करनी है, जहां आपने ये कर लिया वो आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब इतनी सारी चीजें, तो वो क्लियर है कि इन लोगों ने मेहनत करी है, भाई साहब इनके पास डेटा है, दे हैव रिसर्च अबाउट इट। सेकेंडली, इनके पास फ्लो चार्ट है, इन्हें पता है कि किस फ्लो में काम कर रहे हैं, रैंडमली नहीं भग रहे। तीसरी चीज, कोई वर्किंग प्रोटोटाइप या कोई इमेज हो, कोई न्यूज हो, वट है ना, ये। और चौथे में आपका कोड। तीसरे में जनरली हम लोग वर्किंग प्रोटोटाइप रखते हैं, जो हमने बनाया होता है, भले ही वेबसाइट को होम पेज है, ये रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एक हिंट और दो, एक आइडिया और दो, कभी भी ना, कभी भी
आप अपनी पूरे सॉल्यूशन को पहली बार में मत दिखाना। जैसे कि हैकेथॉन्स में ना मतलब राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इवैल्यूएशन की। तो बच्चा क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेनली जो जूनियर्स होते हैं वो हमेशा ये मिस्टेक करते हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है, मैं अभी बता देता हूँ, यूज करना हो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेट से आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का 60% बना लिया है, आपका हो चुका है हैकेथॉन में जाने से पहले। हैकेथॉन था लेट से 5 सितंबर को, ठीक है, आपने 1 सितंबर तक बना लिया, 60% हो चुका है। बच्चा यहाँ आया, अब पहली बार में इंप्रेशन जमाने के चक्कर में ना वो पूरा का पूरा 60% बता देता, गड़बड़। और ये और बोल देगा सर फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हमने ये सोचा है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा होगा, कुछ भयंकर सा सोचा होगा उन्होंने, है ना। वो बंदा यहाँ आएगा पहले राउंड के बाद और बोल देगा कि भाई साहब देखो ये राउंड हुआ है 4 बजे शाम के, दूसरा राउंड होगा 9 बजे, और तीसरा राउंड सुबह होगा लेट से 7 बजे। वो बोल देगा ठीक है, काम करो आप तीसरे राउंड तक ये जो आपने फ्यूचर स्कोप बताया है इसको कंप्लीट कर। तो बच्चा खराब, दिमाग क्या भाई साहब, अब क्या कर, जो सबसे मुश्किल चीज थी वही तुमने बता दी, वो बंदा वही तुम्हें काम दे गया। अगर तुमने कर लिया गुड, यू आर इन, नहीं किया टाटा बाय बाय। इसलिए सोल्यूशन क्या है, हमें ये बताना ही नहीं, जो काम आपका हो रखा है उसी को बता दो कि यही हमारा फ्यूचर पॉइंट है, यही हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। एक छोटी सी ट्रिक जिससे कि आप हैकेथॉन में एंजॉय भी कर पाओ, आप लोगों से बातचीत भी कर पाओ, और आपका काम तो ऑलरेडी हो ही रखा है। बिल्कुल खाली भी नहीं घूमना, थोड़ा बहुत काम करते रहना, दिखना चाहिए। ये जो ज्यूरी होते हैं ना बहुत तेज दिमाग के होते हैं, ये अपने स्पाई कैमरा छोड़ देते हैं बीच में, ऐसा ही इसमें तो बहुत होता है। फाइनल ऐसा ही जो होता है ग्रैंड फिनाले बहुत करते हैं, ठीक है। आप अपना पूरा टास्क एक बार में कभी ना देखें, उसका कुछ पार्ट या कुछ बहुत जो अच्छा पार्ट हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत अच्छा जो एक ठीक ठाक लगे डिसेंट, उतने पार्ट को बचा के रखो। सर ये हमें करना है, भले ही तुमने कर रखा है, दिखाओ मत। वो बंदा तुम्हारा कोड नहीं चेक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन के लिए जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, पीएसए फॉर्मेट, प्रॉब्लम, कौन सी स्पेलिंग है प्रॉब्लम की मुझे नहीं पता, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, और जैसा मैं बोल चुका था अप्रोच, खत्म है पीएसए फॉर्मेट। आप वो बंदा आया, आपने पहले स्टार्टिंग का एक लैपटॉप जिसमें कि डेटा दिखा रहे हो, इमेजिन कर लेते हैं डेटा दिखा रहे हो आप, वुमेन सेफ्टी का है या सिटी बस का है, वॉट एवर द केस, ठीक है। डेटा दिखाया, दैट इज द प्रॉब्लम। आपने अब उसको कुछ फ्लो चार्ट या कुछ वर्किंग प्रोटोटाइप का वो क्या कहते हैं, कोई वेबसाइट दिखाई, वर्किंग प्रोटोटाइप जो भी आपका आउटपुट दिखाया उसका, दैट इज द सॉल्यूशन। पीपीटी दिखाई या कुछ भी है, और तीसरी साइड में रखा हुआ कोड, लीस्ट इंटरेस्टेड पार्ट। कोई भी ज्यूरी कोड में इंटरेस्टेड नहीं होती, दैट इज द अप्रोच। कोई नहीं पूछता, बहुत रेयरली होता है। आपका मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां आपने बोला सर वुमेन सेफ्टी, उसे पता है तुम क्या बना रहे हो, गया सर मेंटल हेल्थ चैटबॉट, उसे पता है तुम क्या बना रहे हो, भरी पड़ी है चीजें। आपको कुछ इस तरीके की भूमिका, आपको स्टार्टिंग का कुछ इस तरीके का फ्लो लेकर आना पड़ेगा। और सर हार्डवेयर का प्रोटोटाइप, हार्डवेयर, ये अच्छा सवाल है। हार्डवेयर वाले में आपका जो मेन क्रक्स पार्ट है, अगेन सेम थिंग, ये मत बताओ, आप बता दो कि हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव। समझियो हृदय, समझियो, तूने कोई मेरे को चीज बताई, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तूने बनाया, तूने बताया कि सर ये हमारा फ्यूचर स्कोप है, हम इस हैकाथॉन के बाद इसके ऊपर काम करेंगे। वो बोलकर चला जाएगा, बहुत कॉमन चीजें बोलते हैं कि हैकाथॉन के बाद क्या करोगे, हैकाथॉन में अभी तो ना पूरी टीम आपकी है, 6 लोग बैठे हैं, 24 घंटे हैं, अभी बना के दे दो, आप मेरे को सुबह तक दिखाइए ये चीज, मैं देखना चाहता हूँ, बस। अब उसमें तुम्हें वही काम देगा, और तुमसे अगर नहीं हो पाया, जो कि मेनली नहीं ही हो पाता, कबाड़। दूसरी अप्रोच क्या है, तूने कर रखा है मुझे नहीं बताया, किसी ने हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, ठीक है मुझे करके दे दो। हाँ, अब तो क्या अच्छा बना दिया साथ को, ये लो बना हुआ है, मतलब उसे बताना नहीं है, जब वो चला जाए अपनी टीम के बीच में बात कर लो, सर हमने बना रखा, हमने बना रखा। अब जब वो सुबह आएगा, दोबारा आएगा, तुमने वो तो दिखा ही दिया, साथ में इतने टाइम में जो तुमने और एक्स्ट्रा बनाया कि सर हमने ये भी कर दिया, वो बंदा मोर देन हैप्पी। क्या टीम है, जो बोला था वो भी कर दिया, एक्स्ट्रा भी करके लाए। एक्स्ट्रा इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, गेटिंग द पॉइंट।
हैकेथॉन इज नॉट अबाउट कोडिंग एट ऑल, फर्स्ट थिंग। ये साइकोलॉजी और टैक्टिक्स का खेल है। पॉलिटिक्स बहुत होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स, अंधी पॉलिटिक्स होती है। कोई एक कम्युनिटी या कोई कॉलेज का कोई क्लब करवा रहा है, ई सेल करवा रहा है या सी डी क्लब करवा रहा है, जो भी है ये करवा रहे हैं। उस केस में अब इनके भी जान पहचान वाले बंदे होंगे, जो टीचर है मेंटोर, उसकी भी कोई ना कोई फेवरेट टीम होगी। तो पॉलिटिक्स होती है। हमें मुद्दा है फाइनल से, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हुई कि हम क्या बात कर रहे हैं, वॉइस लो नहीं रखनी। अब मैं आ जाता हूँ फाइनल पीपीटी, जिसके लिए तुम इतनी देर से तड़प रहे हो। पहले ये बता दो कि अभी तक की बात क्लियर है तुम्हें? कोई भी ऐसे जो कहे नहीं हमें क्लियर नहीं हो पा रही बात? कोई सवाल जवाब, शक शंका संदेह? मुझे भी यार अपनी पीपीटी मंगानी पड़ रही है, लैपटॉप चेंज हो गया है। सही है, ऑल क्लियर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार। राइट क्लियर है। कोऑर्डिनेटर से बनाकर रखो, उसके प्रोजेक्ट शोकेस बुला बुला कर। हाँ करेक्ट। वो टीचर्स के कान भरता है, बिल्कुल सही बात है। जो कोऑर्डिनेटर है ना, उससे बनाकर चलो। अगेन आपको लगेगा कि सर ये तो मतलब बहुत गलत बात हो रही है, बाइसिंग हो रही है, बहुत ही गलत चीज है। डूड, द वर्ल्ड इज वर्किंग लाइक दिस ओनली। या तो आप कंप्लेंट कर सकते हो या आप उस सिस्टम के साथ खेल सकते हो। तो कंप्लेंट करने वाले का घंटा कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है सिस्टम की ऐसी तैसी मारो, सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लो। सर हैकाथॉन में सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है? डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर तेरा प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली तू जावा तो नहीं ही करने वाला, राइट? सर हैकाथॉन्स में एंटर होने के लिए हमें खुद से प्रॉब्लम लेके उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। जी, बहुत सारे हैकाथॉन्स आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बहुत सारी कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं। बनी हुई प्रॉब्लम्स का भी बहुत अच्छा सोल्यूशन लेकर आया जा सकता है, राइट? जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब हम लोगों ने ऐसे ही जीता था। एक बीमारी होती है सेरेब्रल पेल्सी। ये जिसमें कि बच्चे ठीक से बोल नहीं, स्टीफन हॉकिंग्स वाली बीमारी बेसिक भाषा में, जिसमें बच्चे ठीक से बोल नहीं पाता, स्पीकिंग लैंग्वेज सही नहीं होती, राइट? तो हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया था हियर मी एयर। क्या था, मैं अगेन ये से मैं आप लोगों को समझाता हूँ एकदम स्पीड में थोड़ा सा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी बचपन से ही ब्रेन नर्व सेल्स में प्रॉब्लम होती है, और वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा इस तरीके की आवाज निकलती है, वो नहीं बोल पाते हैं। ब्रेन सेल्स में प्रॉब्लम है, नर्व में प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हालांकि डिमनेशिया करेक्ट, लेकिन इनके साथ डायस्लेक्सिया एक बीमारी है, सेम चीज वही हो रहा है। लेकिन इन बच्चों को अगर बिल्कुल लेवल जीरो से, यानी कि जब ये 4 साल के, 5 साल के, 5 से 10 12 साल तक की एज में अगर इनको सही ट्रेनिंग दी जाए ना, स्पीच ट्रेनिंग दी जाए, तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग लेकर आए हैं सॉल्यूशन हियर मी। ये एक ऐसा एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एक 3D मॉडल उस बच्चे की टंग और लिप मूवमेंट को ट्रैक करेगा, और जब तक वो एक स्पेसिफिक शेप में नहीं आ जाता, जब तक वो एक स्पेसिफिक शेप में नहीं आ जाता, तब तक वो मॉडल आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर आपको बोलना है नमस्ते, तो ना, ना उसको ये करना पड़ेगा कैमरे के सामने, वो मॉडल उसे ट्रैक करेगा। अगर वो कर रहा है, नो, इट वोंट मूव फॉरवर्ड। ये था सोल्यूशन हियर। थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर। और तीसरी चीज, आपको पीपीटी दिखानी थी मुझे, विनिंग पीपीटी देखनी। अब इसमें कई सारी चीजें हम लोगों ने ऐड करी थी, लाइक जो हमारा 3D एआई अवतार था उसका नाम समर्थ था, है ना? अब मतलब बहुत बहुत लॉट ऑफ फ्यू थिंग्स, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर जरा पॉज कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी पॉज कर रहा हूँ। Recording stopped. मुझे मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी यार, मतलब मिल तो गई है।
एक तो ये रही, मैक भी हैंग होता है। मेरे को मेरी वाली मिल गई। Let me show this to you real quick. Is it visible to you people? क्या ये विजिबल है? चैट बॉक्स में एक बार एक्नॉलेज कर दो मुझे। यस, ओके। ये हमारी लास्ट ईयर Recording की in पीपीटी है, progress. वीरा, प्रोटेक्टिंग वुमेन सेफ्टी, राइट। अब ठीक है, अगेन हम लोगों ने भी एक छोटा सा थीमिफिकेशन किया था कि अरे मतलब कि ये जो एसआईएच की कलर थीम है, इसी को मैच करते हुए हम लोगों ने ये वाली थीम रख ली थी, ये ऑरेंज और ग्रीन, सैफरन ऑरेंज कुछ भी बोल। सेकेंड पार्ट, क्लीन क्रिस्प रखने के लिए स्टार्टिंग में एक छोटा सा पैराग्राफ, हमें नहीं पता सामने वाला पैराग्राफ माइंडसेट का है या पॉइंट्स वाले माइंडसेट का है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स। वीरा वुमेन सेफ्टी सॉल्यूशन, एआईएमएल, मेल टू फीमेल रेशियो, सराउंडेड बाय मेन, हेल्प जेस्चर्स, वीरा ऐप यानी कि कैप भी है, वर्क्स इन लो नेटवर्क एरियाज, एसओएस। खत्म। उस इंसान को पता है इतना पढ़कर कि क्या बात हो रही है, आपको भी पता है क्या बात हो रही है। अगर वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा तो वो पूरा पढ़ लेगा, क्या दिक्कत। अगला, सीसीटीवी बेस्ड, ओके, मेल टू फीमेल रेशियो सीसीटीवी बेसिस पे निकल रहे हैं एआई मॉडल के थ्रू, केवल बोल्ड पॉइंट्स। जेस्चर डिटेक्शन मेक सेंस, आगे डिस्कस भी नहीं करना। सीसीटीवी बेस्ड डिटेक्शन ऑफ वुमेन सराउंडेड बाय मल्टीपल मेन एंड सो। टेक्निकल अप्रोच, टेक स्टैक, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस को ज्यादा समझता है, इस वजह से नाम नहीं लिखते हम लोग कभी भी। व्हाट वी डू इज हम सिंपली इमेजेस डाल देते हैं। मैक्स टू मैक्स कितनी स्लाइड्स रखनी चाहिए डिपेंड करता है। अगर एसआईएच है तो एसआईएच 12 स्लाइड्स की परमिशन देता है, आप 12 स्लाइड्स रख सकते हो, राइट। अब जैसे यहाँ पर सिंपली आपको कहीं नहीं जाना है, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो हमने ये बिल्कुल अलग एक लैपटॉप में रखा था। सीसीटीवी बाद में कवर करते, पहले फोन, फोन से ये सारे फीचर्स है फोन के अंदर। आपने शेक करा, एसओएस बटन दबाया, हेल्प 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 चिल्लाया, या लो नेटवर्क में फोन आता है, एक एसओएस ट्रिगर होगा जो कि सर्वर पर जाएगा, अलर्ट नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मैसेजेस भेजे जाएंगे डिपेंडिंग ऑन यूजर डेटा। एंड द सेम केस गोज विद सीसीटीवी। अल्टीमेटली हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो एसओएस है। वन अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच। एक और दिखाता हूं मैं ऐसे ही। ये हमारे ही एक स्टूडेंट की है, ये लास्ट ईयर वाले हैं। डिजिटाइज एंड शोकेस monasteries of Sikkim of tourism, culture and preservation. I'm not sure what problem statement this is about, मैं भूल गया, बट अच्छी है, मतलब इमेजेस यूज करी हैं इन लोगों ने। मेनली तो फ्लो डायग्राम में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हम लोग। ये कुछ ग्लिच है, पता नहीं। अच्छा, एक और आई है मेरे पास, जस्ट गिव मी मिनट। एक ही आई है। अच्छा, they have also done the same stuff. Mobile based operation and maintenance tools, tool for drinking. दिस इज वेरी नाइस। मैं भी इसको मतलब पहली बार ही देख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सही है यार। लॉगिन पेज इन्होंने दिखा रखा है, एडमिन मोड दिखा रखा है, यूजर मोड के स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं,
टेक्स्ट बहुत कम है, अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बहुत ही कम है। यहाँ पर इन लोगों ने पूरा पूरा इमेजेस के साथ खेला है। कीपैड फोन डायलिंग मेथड भी है इनके ऐप में। ऑनलाइन डैशबोर्ड बना रखा है। स्टार्ट नोटिफाई एडमिन। शानदार यार, शानदार, वाओ। the same stuff, text stack में instead of text let's write or implement these uh, logos of the language or whatever the text stack you are using. इन लोगों ने logos और ये images के साथ बहुत अच्छा काम किया। loved it, loved it. very nice. ये मुझे जस्ट अभी अभी संस्कार भाई ने शेयर करी है, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। तो अच्छा, लास्ट में रिसोर्सेज इन्होंने कहाँ कहाँ से उठाई हैं, जो डेटा इनके पास है वो कहाँ से लिया इन्होंने, दैट दे हैव आल्सो इंक्लूडेड। एक चीज और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आज की डेट में तो कहाँ है, एक चीज और मैं बोलूंगा आप लोगों को कि इंक्लूड योर बिजनेस पीपीटी एज वेल। बिजनेस वाली जो होती है ना, वो चीज और रखना, ये जरूरी है, अब आज की डेट में तो जरूरी है। सर सीख लिए रिसोर्सेज बता दीजिए। अरे भाई साहब, अभी बताते हैं, रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ऑफ फोन तो उसके बाद बताएंगे, अभी पहले इवेंट होना दो, ठीक है। बिजनेस यानी कि अगेन कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हाय आई वांट टू आस्क what's the tip and tricks to grasp panel's attention in the 2-3 minutes so that our team gets selected in the national level. आपकी स्टार्टिंग लाइन सही है, लास्ट लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है। देयर इज नो डायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड टू द नेशनल लेवल, क्योंकि जो ऑनलाइन राउंड है, ऑनलाइन राउंड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जस्ट लक बेस्ड, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाला माइंडसेट कैसा है, वो इमेजेस ज्यादा पसंद करेगा या वो टेक्स्ट ज्यादा पसंद करेगा, कोई आइडिया नहीं है। जैसे अगर मैं इस बार का मेंटोर हूं, मेरे पास अगर पीपीटीज आ रही है, 100 पीपीटी आ रही है, आई वुड प्रेफर लेस टेक्स्ट एंड मोर इमेजेस। मैं उस चीज को प्रेफर ज्यादा करूंगा। हो सकता है कोई हो जिसको कि टेक्स्ट ज्यादा पसंद होगी, इमेजेस क्यों लगाए रखी, ठीक है। मैक्सिमम स्लाइड्स फॉर एसआईएच 2 पे 25। संस्कार ये इंटरनल्स के लिए है, इंटरनल्स के लिए 6 स्लाइड्स होती हैं, और एक्सटर्नल्स के लिए यानी कि ऑनलाइन राउंड में जो सबमिट करते हैं दैट इज ऑफ 10 स्लाइड्स। सर अगर पीएस एक ईआरपी पोर्टल से रिलेटेड हो तो क्या हिंदी में बोल सकते हैं और इंग्लिश इज कंपलसरी? यार ईआरपी क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ, या तो कुछ क्या होता है, क्या है, मेरे को थोड़ा सा आइडिया दे, समझ नहीं पा रहा इसको। बेसिक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो कॉलेज वाले यूज करते हैं। ओके 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 ओके, डजंट मैटर एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, आप अपनी बात में कॉन्फिडेंट होने चाहिए। अगर तुम्हारे 6 लोग हैं, 6 में से कोई एक बंदा ऐसा जरूर होगा जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होगी, वो इंग्लिश में बोलेगा, थोड़ा सा डाइवर्सिटी रहेगी, बस खत्म बात। तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस थोड़ी ना इसके पीछे यार। लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर, चाहे वो कोडिंग में हो चाहे वो बोलने में हो, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि जब जब भी आप पीपीटीज बना रहे हैं तो उसमें एक लिंक लगा दो एक्सटर्नल बिजनेस के लिए, कि अगर कोई बाय एनी चांस एज केसेस पकड़ रहे हैं हम तो, अगर कोई इमेजेस वाला है इमेजेस भी डाल दिया, कोई टेक्स्ट माइंडसेट वाला टेक्स्ट भी डाल दिया, अगर कोई कोई बिजनेस माइंडसेट से तो बिजनेस पीपीटी भी एक अलग से बना रखी है हम लोगों ने, कि इस चीज को लेकर हम एज अ स्टार्टअप क्या क्या सोचते हैं, ये चीज और इंक्लूड कर दी। अब क्योंकि 10 स्लाइड्स एक्सीड नहीं कर सकते हो तो क्या करें, एक गूगल स्लाइड बनाई, एक गूगल वाली पीपीटी बनाई, उसकी लिंक हमने यहाँ अपनी पीपीटी में अटैच कर दी, खत्म बात, सिंपल। ठीक है, ये पीपीटीज आप लोगों को चैट ग्रुप पर मिल जाएंगी। नाउ आई एम ओपन टू द क्वेश्चंस यू पीपल आर आस्किंग फॉर। मुझे नहीं पता आप लोग मतलब क्या क्या पूछ रहे हो, देखते हैं अभी, ठीक है। अभी तक की बात में अगर कोई भी डाउट हो, सवाल जवाब हो, शंका हो, समाधान हो, मुझे बता दो, आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। सी, अच्छा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सर तो इंटरनल में मैक्स 6 स्लाइड सबमिट करनी है? हाँ भाई साहब, इंटरनल में मैक्स 6 स्लाइड्स का ही परमिशन होती है। बाकी मैं सच बताऊं ना, पीपीटी से कोई मतलब नहीं, जो सामने वाला बंदा आ रहा है ना वो बहुत ही झटक बुद्धि होगा जो वो तुम्हारी पीपीटी देखेगा,
नहीं तो पीपीटी जस्ट ठीक है मेंशन कर रखा है ओके। क्योंकि जब आप इंटरनल में हो तो वहां पर आपसे ज्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन क्या है, वो पीपीटी, वो 6 स्लाइड, वो या ये 6 बंदे, सोचो ना। बिल्कुल ब्रतेज, बिल्कुल। सर एज ए बिगिनर कोई टॉपिक सजेशन, आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न HTML CSS। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, ये बेसिक है, ये आना चाहिए HTML CSS। और थोड़ा बहुत मतलब जेमिनाई GPT वगैरह के साथ खेलना। Can a person still do anything in his third year if he knows little coding but able to develop full stack web apps and never participate in any hackathon, but now he or she wants to participate and learn coding? Is it too late for them? No, it is never late. थर्ड ईयर है भाई, तेरे पास 2 साल है। थर्ड ईयर फाइनल ईयर बहुत टाइम है। बट तेरे को थोड़ा सा रश करना पड़ेगा बाकी से, तेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा अच्छी होंगी। Already selected internal hackathon, now hoping to select in national level. All the very best. JavaScript is necessary. Sir, should first year participate too? Definitely you must. मैं बताऊं, हम जिस कॉलेज में थे GLA में, अगर कोई बच्चा हमारा जो जूनियर जो हमसे पढ़ता है, अगर उसने SIH में पार्टिसिपेट नहीं करा, भाई साहब सामने दिख नहीं जाए वो, SIH या किसी भी हैकाथॉन में यू मस्ट पार्टिसिपेट। फॉर सी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जस्ट टीम अगर मेरी यहाँ पर बैठी है तो दियंगार Recording stopped. Okay, no issue. I feel like उनका कुछ internet का issue हो गया है. So till then, I'll continue this thing. So I just figured out what the maximum number of PPT is. So for that internal and for that submission of the portal, we have to limit ourselves for the 6 PPT slides. जितना भी हमारा इंटरनल हैकाथॉन होगा और इंटरनल के बाद जो हम लोग का SIH का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पे जो सबमिट करना है वो 6 पेज की स्लाइड्स की PPT होगी। ठीक है, देन आफ्टर दैट लाइक इफ यू guys have a chance and you get selected for the final presentation, so you guys will be having an option of creating an PPT with the up to 10 slides or 12 slides. Okay, so this is something which we have to focus right now and make sure कि जो sliders के जो points हैं उसको हम बहुत ही concise and ध्यान से रखें। In this PPT we have lots and lots of options based on what we can present ourselves. So let me just guide you a brief about that PPT section. And Shadab, can you please stop the sharing for a second? Yeah, thank you. Let me brief you guys with this. Yeah. Okay, first of all, we have this slide, first slide. In this, we have to briefly explain whatever our idea looks like, and we can even add our logo by, creating it a smaller version of this image or is this logo. Then we have this idea title, and in this, as Divyanshu sir has explained, we have to, curate our idea based on whatever we feel like. Sometimes we might, add some texts or we might add some visual and graphics and all, because that's totally depend upon the mentor and the judger who is going to judge your PPT. Then we have technical approach. What we can do here is we can even if you have seen that last PPT which Divyanshu sir had shown us,
in that research and references page was, in a sideline of the PPT in a shorter way. Okay, they have combined this page and this impact and benefit page together in this in a single slide. So what does it means? यहाँ पे हर एक चीज का, हर एक स्लाइड्स के हर एक पॉइंटर्स का मार्क्स होता है। ठीक है, तो उस मार्क्स को हमको अगर गेन करना है, मतलब लाइक जो जजमेंट जो इस बार का बैठ रहा है, उन लोगों को ये सब चीजें बोली गई है कि यू हैव टू चेक ऑल Recording in progress. फिजिबिलिटी वायलेबिलिटीज क्या होती हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीजें हमें वहां पे पॉइंटर्स रखने हैं। अब ये जो है, हमें स्लाइड्स की जो लिमिटेशन है कि वो 6 स्लाइड्स तक रखनी है, ये चीज हमें मेंटेन करते हुए कंसाइज एंड क्लीन डेटा रखना है वहां पे। ठीक है, सो दैट चीजें हमारी क्लटर ना लगे एंड चीजें हम लोग अच्छे से दिखा सकें। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही था कि अगर चाहो तो तुम लोग 2 पेज को एक साथ भी रख सकते हो, बट ये याद रखना कि जो हेडिंग्स है, मेजर जो हेडिंग्स है, वो सब तुम लोग वहां पे लिख रहे हो। ठीक है, टेक्निकल अप्रोच में तुम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सप्लेन करके विजुअल डायग्राम्स दिखा सकते हो, जैसा कि सर ने बोला था कि टेक्नोलॉजी पढ़ने से अच्छा दिख जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो शायद पढ़ने में कुछ चीजें मिस हो जाएं, पर वो लोगो देख के शायद समझ जाएंगे कि क्या चीजें यूज हुई है। ठीक है, देन इस स्लाइड्स को बहुत अच्छे से लिखना, फिजिबिलिटी वायलेबिलिटी वगैरह। वायलेबिलिटी क्या होती है, फिजिबिलिटी क्या होती है, यू कैन रिसर्च इट आउट ऑन द वेब और चैट जीपीटी एंड ऑल। एक बेसिक सा ब्रीफ अगर बताऊं तो फिजिबिलिटी है कि तुम्हारा आइडिया क्या मार्केट में चल पाएगा कि नहीं। ठीक है, देन तुम्हारे क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, क्या तुम चैलेंजेस अपने जानते हो, क्या तुम अपने रिस्क जानते हो, और क्या उनसे निपटने के लिए स्ट्रेटजीज जानते हो। सो दीज आर सम बेसिक की पॉइंटर्स which we have to mention here. And whenever we talk about impacts and benefits, so we are going to talk about social, economical, environmental and all those, जो मेजर हमारे जो वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं, पुअर्टी, एजुकेशन एंड ऑल, ये सब जो बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के क्या इम्पैक्ट होने वाली है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होने वाली है, देन हमारा रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है। लाइक इफ यू इम्प्लीमेंट दिस थिंग विद एन अ कॉस्ट ऑफ हैविंग सर्वर्स, हैविंग AI is embedded and all. So what's your what at the end? What will be your revenue model, revenue streams? So everyone should find some benefits, right? So this is what you can add here, and lastly, you just have to add up some references or some research works. Like for example, you have read it out and paper that is attention is all you need. That's an AI paper which is working on transformers, right? So if you have you have created something related to generative AI and where you have implemented transformers and all, so you can add that paper, research paper link. ओके, सो जो भी तुम्हारा जज होगा उसके पास एक अच्छी नॉलेज होगी, उसके पास एक अच्छा स्किल सेट होगा, जस्ट लाइक आर दिव्यांशु सर। He have some proven results, or you can say a proven past, so he knows everything, right? So he can be capable of judging that paper as well. So whatever you are pasting there, make sure कि वो चीजें एक हाईली इम्पैक्टफुल चीज हो। अभी ये ना लिख देना कि भाई मैंने चैट जीपीटी से सब कुछ लिखवा के रख दिया। चैट जीपीटी भी तुमको सोर्सेज देता है, ठीक है, तो यूज सोर्सेज। ओके, so I feel like this was a thing which was a little bit missed by Divyanshu sir because of his internet connection. And I feel like let me see is he is available again or not. Like let me come back to the screen. Hey Divyanshu, are you here? Okay, is not here. Pratesh, in the business PPT, you can even link up a small link. You can just add a small link in your PPT, and you can write it कि visit my business PPT. So you can like तुम्हारे पास लिमिट 6 स्लाइड्स की थी, but you can grabs it for the future as well. Okay. So yeah, the session was truly amazing and insightful with Divyanshu sir. But unfortunately, I don't know. I guess there is an internet issue or somewhat uh, something like problem on his side. So let's start. Okay, DK sir is there. Okay, got it. So hey Divyanshu, it's over to you, right? You can compile your presentation.
Wait a minute, I'm new to this. How to add this co-host, and everyone. Yeah, I think this is. Actually, I didn't know a lot about this Zoom meeting. Let me figure it out. Or you can text me on the WhatsApp. Mm, anyone can help me. Shadab, can you do this thing? There is no such option as a co-host to. Okay. Only host can make someone as a co-host. Okay. Can you tell me? He doesn't have the permission, I guess. Okay. Just let me know how to, add him as an host. I didn't know about. Let me exploring host tools. Yeah, right. I guess. His Mm, username is DK. no participant record. Unmute. Okay. Uh, Somebody can write in the Yeah, chat I'm as well. back. I'm back. Yeah. Okay. Yep. Sure. Cool. Am I audible, people? Sanskar, am I audible? Yeah. You are audible. ग्रेट Yeah, ग्रेट yeah. ग्रेट कोई दिक्कत नहीं भाई. अरे यार पता नहीं एकदम से वाईफाई बंद कर दिया इन बदतमीजों ने. ओके सो No issues. अभी मैं संस्कार सुन रहा था. Right. You are mute. Your mic is muted again. There might be again some issues with his Wi-Fi or something. No issues. Sanskar, just right click on my video tile and there you Got will it. see the I got section it. of Yeah. Change host. change the Yeah. host. I got it. Option. Yeah. You are the host. ओके ग्रेट. हाँ तो मैं क्या बोल रहा था तो भूल गया. हाँ ठीक है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड. कल जब हम लोग मिलेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द एआई टूल्स जितने भी हैं और कौन सा एआई टूल किस चीज के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है. ये हमारा मेन मुद्दा होने वाला है भाई साहब. और रही बात सी रिसोर्सेज की या पाइथन के रिसोर्सेज की, सो अगेन एज दीपांशु हैज ऑलरेडी शेयर्ड, हम लोग सी और पाइथन की डेली फ्री क्लासेस लेते हैं. सी की तो जस्ट अभी शुरू भी हो चुकी है आई गेस. अंदर चल रही है अभी सी की क्लास और दीपांशु ने लिंक भी शेयर कर दिया है गेस व्हाट्सएप ग्रुप की. राइट. पाइथन की 10 बजे होती है एंड दैट्स ऑल व्हाट वी पीपल डूइंग एवरी डे एवरी मिनट. बस यही मोटिव है कि आप लोगों को सिखाएं. आज मेन फोकस यही था यार मेरा. तो मतलब जब मैंने फीडबैक में देखा था कि पीपीटीज वगैरह प्रेजेंटेशन के बारे में मेन मुद्दा जो है ना संस्कार, वो यही है कि हमें अपनी आवाज इस तरीके की रखनी है कि सामने वाला सुने. हम Right. चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट के अंदर ही हम अटेंशन ग्रैब कर लें. मेन मेन जो फोकस है वो इसी चीज का है. वो कैसे Right. होता है? कोई भी इमोशनल लाइन, कोई भी ऐसी इम्पैक्टफुल लाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, ठीक है. अब हम लोगों ने जब प्रेजेंट किया था व्हाट वी डिड वाज हम लोगों ने एक एक्ट प्लान किया था. हम लोगों ने बस सर मान लीजिए हमारी ऑब्वियसली ऐसे ही में हर टीम में एक लड़की होती है, तो हमने हमारी जो टीम की फीमेल मेंबर थी हमने उसको बोला कि सी वी टू पीपल विल बी टीजिंग यू. जब तुम रोड से जा रही हो, वो जा रही थी हॉल के अंदर ही हमने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में फोन है, उसने शेक कर लिया. ओके वेट, हो सकता है उसका फोन ही छीन लिया गया हो. अब क्या करेगी? उसका फोन कोई अगर जो छेड़ रहे हैं वो 2 लोग हैं, दूसरे वाले ने फोन छीन लिया, अब वो फोन शेक नहीं कर सकती. व्हाट यू कैन डू? उसने 3 बार चिल्लाया हेल्प हेल्प हेल्प. फोन ने ट्रिगर किया एसओएस कॉल और बहुत सारे फिर उसमें जो भी फीचर्स थे जिस तरीके से वो काम कर रहा था. राइट. हो सकता है उसका मुंह दबा लिया हो, तब भी हमारे पास एक सोल्यूशन है. हो सकता है उसे किसी ऐसी जगह पर परेशान किया हो जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, सर्वर कॉल नहीं हो सकता है, तब भी हमारे पास सोल्यूशन है. हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी कम हो, तब भी एप्लीकेशन काम करेगी. और इस तरीके की जो भी एज केसेस थे हमने इस तरीके की लाइंस यूज करी थी इमोशनल इम्पैक्ट के लिए. और जहां आप तेज आवाज में बोलते हो ना, स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सामने वाला अपना अटेंशन आपको दे देता है. राइट. दिस इज वन ऑफ Right. द वेज. एक एग्जांपल इसके पास मेरे इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास भी है.
सो मेरा भी पहला हैकाथॉन था जिसको मैंने जीता भी था। सो उस पहले हैकाथॉन में हम लोग सेकेंड ईयर में थे, एंड एट दैट टाइम हमने देखा कंपटीशन में तो यार थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे बैठे हुए हैं, सो हम लोग इसको जीतेंगे कैसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि या तो हम जीत सकते हैं टेक से, या तो हम जीत सकते हैं अपने इमोशन से, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे इमोशन अभी भी बिकता है। यहाँ पे लोग इमोशनल है एक्चुअली। सो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ट्रिगर किया कि इमोशन हम कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स को। तो टीचर्स सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उनके स्टूडेंट से, तो हमने स्टूडेंट बेस एक प्लान बनाया कि हम स्टूडेंट रिगार्डिंग कुछ एक आइडिया लेके चलते हैं एंड उसको सेल करते हैं, एज एन टीचर को हम इमोशन सेल करते हैं। तो हमने ऐसा ट्राई, नाम रखा हमने अपने आइडिया का बडी सिंक। ठीक है, अब बडी सिंक क्या था, बडी सिंक इज एन वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कॉलेज नीड एज अ स्टूडेंट। It's not just an another startup or something called as a problem solution, but it is a friend. It is a friend of what? It is a friend of students, teachers, and anybody in the college academics. And so हमने यहाँ पे अपने आइडिया को एक दोस्त बना के प्रेजेंट किया, और इंसान सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है अपने दोस्तों से। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को एक इमोशन के साथ कनेक्ट किया कि बडी सिंह जो है ये आपको इमोशनल ब्रेक डाउन कॉलेज के समय पे, और आपको स्टार्टिंग गाइडेंस, और अपने कम्युनिटी लाइक माइंड फ्रेंड्स को ढूंढने में, और लाइक ये अदर अदर बहुत से हमारे फीचर्स थे। तो हमने सब कुछ ये प्रेजेंट किया कि हम आपको क्यूरेटेड एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आपको स्टूडेंट के कम्युनिटी बिल्डिंग से लेके उसके मेंटल सपोर्ट से लेके उसको फूडिंग, लाइब्रेरीज एंड सारा जितना भी सपोर्ट हम दे सकते हैं, हम लोग उसको बडी सिंह के थ्रू दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी नो वी हैव ट्रिगर्ड एन इमोशन काइंड ऑफ इमोशन काइंड ऑफ थिंग फॉर द टीचर्स। एंड देन टीचर्स को हमने ये बोला कि सर जानते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर अभी अभी निकले हैं, और हम फर्स्ट ईयर को अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें झेली हैं फर्स्ट ईयर में। तो हम अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लेके आए हैं, और अब हमने अपने जो जूनियर्स हैं उनको हम कोई सफरिंग ना दे पाए, तो हम एक सोशल मोटिव की तरफ, एक इमोशन सेलिंग की तरफ चले गए। सो दिस इज हाउ वी कैन फ्रेम आउट आवर प्रेजेंटेशन। वी कैन either sell emotion, or we can either sell our tech to the presentator. And as Angar, as Divyanshu sir has told कि इन्होंने एक एक्ट प्ले किया। एक मेरे पास भी इसका एक एग्जांपल था कि एक हमारे में एक हैकाथॉन हुआ था कॉलेज में, तो उसमें एक टीम आई थी यूसीआर की। देन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले आके एकदम लाउड वॉइस में, जैसे एक्ट प्ले होता है ना, जैसे एक्टिंग का हम लोग हनुमान जी का वगैरह रोल देखते हैं ऐसे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। उन्होंने पूरा एक लॉ का एक केस का बनाया था, उन्होंने एक पूरा अपना एक विटनेस का वो बनाया, तो उन्होंने ना एक अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बना दी। उन्होंने ना ही केवल एक जो जज है हमारा उनको कन्विंस किया, बट रैदर उन्होंने जितनी भी ऑडियंस थी उनके माइंड में एक ट्रिगर बना दिया कि भाई ये लोग तो कुछ हटके कर रहे हैं, ये लोग तो एक विनिंग पोजीशन पे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टैंड आउट एट एनी हैकाथॉन, एंड यू कैन बिल्ड योर पर्सनल पर्सोना, जिसको देख के तुम्हारी वो उस लोकेलिटी में, जिस लोकेलिटी में तुम बैठ के हैकाथॉन दे रहे हो, वहां पे तुम्हारी एक अलग ही इमेज बन जाएगी, तुम्हारी एक हाइप बन जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज अनफेयर एडवांटेज एट एनी कॉस्ट। लाइक finding an unfair advantage at anywhere would be the best thing you can do, and trust me, unfair advantage हर जगह होते हैं, बस हमें देखना आना चाहिए, एंड वी हैव टू बी दैट मच स्किलफुल कि हम वो unfair advantage ढूंढ पाए कहीं पे भी। So this is what my experience is, and yeah, Divyanshu sir, you can continue. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, 100% ट्रू। और मतलब मैं तो यार एक चीज जानता हूँ ना, देखो बेसिक इंसानों की तरह सोचते हैं। संस्कार, मान लो अगर मैं ही जूरी हूँ या आप जूरी हो, यहाँ जितने भी हमारी जनता बैठी है, शानदार जनता बैठी है, ये ही जज की कुर्सी पर बैठे हैं। जैसे ही किसी टीम ने बोला वुमेन सेफ्टी, अरे यार बहुत सुन चुके, और सामने वाले बंदे को पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो, कैसे बोलने वाले हो। तो हमेशा नेवर लेट एनीवन एक्सपेक्ट योर नेक्स्ट मूव। वो मान चुका है कि अब यहाँ पर एक टीम आएगी, वो बोलेगी सर हमारा नाम ये है, हम सेकंड ईयर से हमने ये बनाया है, या पीएसए फॉर्मेट फॉलो करिए सर, ये प्रॉब्लम आपने फेस करी हो, वो करी होगी। ठीक है यार, कॉमन है। लेट्स प्लान समथिंग न्यू। जैसे अगर हियर मी आई की बात करें, व्हाट वी डिड, हमने एक वीडियो ही प्ले कर दी जिसमें कि एक बच्चा है जो कि उस प्रॉब्लम से एक्चुअल में सफर कर रहा है। वो ठीक से नहीं बोल पाता, डायस्लेक्सिया से सफर कर रहा है। ठीक है, अब वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो 6 लोग खड़े हुए हैं, ये जो 12 आंखें टिमटिमाती हुई उसे देख रही हैं, ये कुछ बोलेंगी। कुछ नहीं बोला, हमने सीधे वीडियो प्ले कर दी विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। अब उनसे पूछे सर आप एक बात बताइए, इसने जो बोला आपको समझ में आया क्या?
ऑब्वियसली वेट हाँ करो उनके रिप्लाई का, क्योंकि राइट आपने क्वेश्चन बोला। अब वो बंदा आपके लिए ज्यूरी नहीं है, अब वो आपकी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि सवाल जवाब आपस में शुरू हो चुके हैं, एक राइट कम्युनिकेशन बन गया, राइट। अब यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उन सब से अलग आप अपने आप हट गए, अपनी प्रॉब्लम को आपने फील कर लिया, अपनी बात को आपने बोल दिया। अगर आप उसे एक्चुअल में बता पा रहे हो, सामने वाले को समझा पा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हैकाथॉन में जीतो या ना जीतो, लेकिन देयर इज अ प्लेस जहां आप जीत चुके हो। और आगे डेफिनेटली जब हम मेहनत करते हैं तो यार यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, हमें डेफिनेटली मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। राइट तो these are some really valuable points guys। ये सब चीज़ें जानते हो एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं, एंड यू गाइस हैव द प्रिविलेज कि इन सब चीज़ों को अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हो विदाउट एनी हैविंग दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस लाइक इन अ हैकाथॉन एंड ऑल। सो अभी अगर तुम इन सब स्ट्रैटेजीज पे काम करना शुरू करोगे, सो देर इज एन ऑलवेज एन विन विन सिचुएशन फॉर यू। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन हम जरूर इस चीज़ को कॉन्कर करके आगे विन करेंगे। सो yeah, I think it's clear, and that's a great session from your side, and we would love having you again and again in our sessions. So, yeah, we will be waiting for future opportunities as well from your side. So now I would like to I would like to call Anshuman to conclude, or somewhat you can finish the workshop. Anshuman or Shadab, anyone can continue this. Okay, go for it. Thank you, Divyanshu sir. Okay. Hey Divyanshu sir, please make Anshuman the host Yep. of this call. Yeah. Just ask him to raise his hand. I can't see him. He needs to. Anshuman. Okay, got it, got it. एंड गाइस सारे रिसोर्सेज रिकॉर्डिंग्स वगैरह सभी को मिलेंगी, बट आपको अटेंडेंस फॉर्म पहले फिल आउट करना पड़ेगा हाँ गाइस, अटेंडेंस बिकॉज फॉर्म मैंने शेयर कर दिया चैट में, प्लीज आप लोग उसको फिल कर दीजिए सो दैट वी कैन क्लोज दैट फॉर्म। या Hello everyone. So I hope the session was truly valuable for you all. And before ending the session, I would express my heartfelt thanks to Divyanshu Khandelwal for his valuable insight on the presentation and all the points that he have mentioned. I hope this point will be very helpful for you as for your future references as well. Do fill out this attendance and feedback form, which will be mandatory to get certificate for this 3 days boot camp. Yeah, one special announcement at the last, I would say that as you all have been in the session throughout the session, so yes, the session and the bootcamp duration is extended by 1 day. So it's a opportunity for you guys. जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, डेफिनेटली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा की लर्निंग्स मिलेंगी जो आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट अटेंडेंस फॉर्म प्लीज़ अभी फिल आउट कर लो। लास्ट डे की तरह हम लोग इसको ग्रुप में नहीं सर्कुलेट करेंगे। सो डू फिल आउट दिस फॉर्म, 2 मिनट लगेगा। किसी को कोई क्वेरी हो अटेंडेंस फॉर्म के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है। ऑल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विथ यू शॉर्टली, कीप पेशेंस। The attendance and the feedback form is open till 9:30 only, so fill before it.